back to Supergrads Cat, and today we will be talking about a very important process which is very crucial while you are filling out your application forms. As we all know कि ZAT 2025 का notification अभी कुछ दिन पहले as in मंडे को ही आउट हुआ था. On 15th of July the notification was out that ZAT 2025 will be conducted on 5th of January. So today we will be discussing about the form filling process step by step for ZAT 2025, which is very crucial. So जब भी आप अपना form fill करने बैठेंगे तो make sure you watch this video, and I would request you all to please stick till the end so that you do not miss out on any important step. Form filling बहुत crucial होता है for any management exam or any other exam that you are planning to write in future. Also there are certain things that you need to keep in mind, और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपको handy अपने पास रखनी होती है. Certain documents that you should keep handy with you when you're doing the form filling process, ताकि आपको बाद में hassle ना करना पड़े. And a lot of students had this query कि ma'am what would be the last date for ZAT 2025 form filling. I would suggest कि आप last date तक का wait मत कीजिए. Although as per last year's data, last date stretch हो गई थी ZAT की December 10th तक. I think last year form filling था, उन्होंने extend भी कर दिया था registration. But you cannot predict anything about this. So अगर last date की मैं बात करूँ तो last week of November last date हो सकता है ZAT form filling का, या first week of December तक आपके पास time है ZAT का form fill करने का. But अगेन हम लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करेंगे, बल्कि हम ZAT का फॉर्म अगर आप जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल कर लीजिए, सो दैट यू गेट द प्रेफरेंस सिटी ऑफ योर चॉइस. आपको अपने चॉइस का सेंटर मिल पाए, बिकॉज अगेन इट इज वेरी बिग हैसल विथ रिगार्ड्स टू द सेंटर रिक्वायरमेंट्स एज वेल. तो जो भी आपका प्रेफरेंस सिटी हो, अगर आपको वो चाहिए तो आप प्लीज जितना जल्दी हो सके ZAT का फॉर्म फिल आउट कर लो. बट प्लीज इंश्योर कि एक एक स्टेप आप केयरफुली देखो. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि जब आप ZAT का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करोगे तो आप कौन से वेबसाइट पे जाओगे. सो ZAT का ऑफिशियल वेबसाइट है ये, इस पे आपको जाना है. हियर this kind of window will open. Here you can see it is written ZAT 2025 registrations are now open. 250 plus B schools accept the ZAT score, and we all know कि जो टॉप है इसमें से ZAT का स्कोर XLRI एक्सेप्ट करता है. XLRI जमशेदपुर, a very renowned college that we have. Everybody aims for that particular college. 100 plus cities में होता है ZAT का एग्जाम, and it is one entrance exam that you have. Again यहाँ पे आप register now का button देखोगे. Here it is given. Let us read out this particular information as well कि ZAT 2025 जो है वो Sunday को conduct होगा, that is January 5th को. Now every year ZAT happens to be on the first Sunday of January. So here also January 5th is the date. Again XLRI will be conducting this particular exam for more than 75 years. This exam has been happening, so पूरे all India level पे होता है, and the ZAT score is used by 250 plus institutes. So मैंने इससे पहले all about ZAT के ऊपर एक वीडियो बनाया है where I have mentioned everything about ZAT, be it the paper pattern, be it the syllabus, be it the course, be it the top institutes and their fees and their average package. So you can look at that particular video as well. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ. एज ऑफ नाउ आई वुड लाइक यू ऑल टू पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर डेटा. यहाँ पे आपको सिटीज दी हुई हैं कि किन सिटीज में ZAT का एग्जाम होगा. सो मेक श्योर कि आप एक बार इन सिटीज को गो थ्रू कर लो कि आपका सिटी इसमें मेंशन है या नहीं. इफ नॉट, देन while you are selecting the city preferences, as in आपको एग्जाम कहाँ देना है ZAT का, तो मेक श्योर कि आप जो नियरेस्ट सिटी है, जो भी जहां भी आप रहते हो, आप वो चूज करो प्रेफरेंस वाइज. सो दिस इज व्हाट इज देयर. Now let us look at the registration process as well कि कितने steps हमें follow करने हैं. So here you have to follow 6 steps.
The very first step is registering yourself on the platform, on this particular platform of ZAT. नेक्स्ट यू नीड टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी. सो जब आप रजिस्टर कर लोगे आपके पास एक ईमेल आएगा फॉर द वेरिफिकेशन लिंक वे यू नीड टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी. नेक्स्ट यू नीड टू फिल द जैट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. देन आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा. देन यू नीड टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने पास हैंडी रखने पड़ेंगे. अभी जैट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, कुछ दिन में कैट का नोटिफिकेशन आएगा, देन यू हैव एनमैट, स्नैप एंड ऑल दीज एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आउट, प्लस सर्टेन बी स्कूल्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अप्लाई करना, उनका भी नोटिफिकेशन आउट होगा. तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आई वुड सजेस्ट आप अपने पास हैंडी रखो इन स्कैन फॉर्म. अब हम हर बी स्कूल और हर एग्जाम का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरते हैं. सो ऑनलाइन फॉर्म में आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इन डिजिटल स्कैन फॉर्मेट. फॉर एग्जाम्पल, the very first thing that you need to keep handy is your documents, as in your identity proofs, be it your Aadhaar card, your driving license, your PAN card, जो भी आप यूज करना चाहते हो और जो भी आप उस वक्त एग्जाम के टाइम पे शो करोगे वो आपके पास एक स्कैन फॉर्म में होना चाहिए विद मिनिमम साइज वट एवर इज मेंशन्ड. नेक्स्ट आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, अपना रिसेंट क्लिक पासपोर्ट साइज, स्पेशली ऑन अ वाइट बैकग्राउंड. कोई भी ब्लू या ब्लैक बैकग्राउंड में ना हो, वो ज्यादा प्रोफेशनल नहीं लगता है. वी आर अप्लाइंग फॉर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, सो वी नीड टू मेक श्योर कि वी फॉलो ऑल दीज रूल्स. तो जो भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा आपका वो वाइट बैकग्राउंड में क्लिक होना चाहिए. आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप एक फोटोग्राफ क्लिक करा लो अभी ही. यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम अंटिल बाकी एग्जाम के जो फॉर्म्स है वो आउट हो, तो आप एक रीसेंट फोटो क्लिक करा लो सो दैट आप आगे भी उसको नेक्स्ट ईयर जब आप अप्लाई करोगे फॉर द बी स्कूल्स व्हेन यू फिलिंग आउट योर एसओपीज एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आपको वहां भी काम आ जाएगा. अगर आपके पास ऑलरेडी है रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो तो वेल एंड गुड. इफ नॉट, आई वुड सजेस्ट कि आप एक पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करा लो और उसको मिनिमम साइज में कन्वर्ट करके रखो इन जेपीजी, पीएनजी और जेपीईजी फॉर्मेट. नेक्स्ट important document that we need is a authentic signature. So जो भी आपका signature है एक blank sheet में आप करके रखो, उसका फोटो भी आप क्लिक कर लो और उसको भी सबसे मिनिमम साइज में आप कन्वर्ट करके रखो. सो मेक श्योर दीज डॉक्यूमेंट्स आर देयर विथ यू. अनदर थिंग, whatever mode of payment you're choosing, suppose आप कार्ड से पे कर रहे हो तो आपके पास उसकी डिटेल्स या वो पर्टिकुलर कार्ड आपके पास होना चाहिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपका पेमेंट मोड है. यूपीआई से कर रहे हो तो उसके डिटेल्स आपके पास होने चाहिए. सो यू हैव टू इंश्योर ऑल दीज थिंग्स आर देयर विथ यू हैंडी सो दैट ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आप हैसल ना करो. नेक्स्ट यू नीड टू पे द एप्लीकेशन फी. ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा. देन यू नीड टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, जब आप फी पे कर दोगे उसके बाद यू नीड टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म. नेक्स्ट अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पे अगेन स्टेप्स दिए हुए हैं फॉर द जैट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें स्टेप 1 सेज कि whenever the candidate is able to complete the application form in one go, he can save the data already entered by choosing save and next tab. तो हर जो एप्लीकेशन फॉर्म आप किसी भी एग्जाम का भरोगे तो इट इज नॉट ऑलवेज इन वन गो, इट इज ऑलवेज देयर इन द स्टेप्स कि पहले आपके पर्सनल डिटेल्स होंगे, देन मे बी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आएगा, देन आपके एजुकेशनल डिटेल्स, देन आपका वर्क एक्स. तो एट एवरी मोड मेक श्योर कि आप जो भी डेटा है वहां नीचे एक सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक कर लो सो दैट यू डू नॉट लूज आउट ऑन योर डेटा. सपोज इंटरनेट कनेक्शन चला गया या आप लॉग आउट हो गए उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से, तो एटलीस्ट आपका डेटा वहां सेव्ड रहेगा. नेक्स्ट step 2 says कि candidates are advised to carefully fill and verify the details filled in the application themselves, as no change will be possible entertained after clicking the final submit button. जब आप final submit button क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो. इट इज बेटर कि जब आप डिटेल्स एंटर कर रहे हो तब आप केयरफुली एक बार अच्छे से सब चीजें क्रॉस चेक कर लो. इवन यू गेट अ ऑप्शन ऑफ प्रीव्यू, तो एक बार आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल भी हो जाएगा उसके बाद आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन भी मिलता है
to check and edit the details if you wish to. कहीं आपको लग रहा है कुछ मिस हो गया है या कुछ गलत एंटर हो गया है मुझसे, तो आप प्रीव्यू के ऑप्शन से उसको ठीक भी कर सकते हो. Next step is name of the candidate or his, her father's name, mother's name should be spelled correctly in the application as it appears in the certificate, mark sheets, identity proof. Any change, alteration found may disqualify the candidate. तो आपके marksheets पे, आपके documents पे कहीं पे भी another important document that you need to keep handy with you is your mark sheets. Your 10th का mark sheet, your 12th का mark sheet and graduation में अगर आप ग्रेजुएशन ऑनगोइंग है तो अभी तक जितने भी रिजल्ट्स आपके पास हैं आपके ग्रेजुएशन के, आप उसको इकट्ठा करके रखो. इफ यू आर अ वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी सैलरी स्लिप्स होती हैं, जो भी आपके वर्क के डिटेल्स हैं, यू हैव टू इंश्योर कि वो सब आपके पास हैंडी हो. नेक्स्ट स्टेप, इफ यू सी ओवर हियर, step number 4 says कि candidates can proceed to scan and upload photo and signature as per the specifications given in the guidelines. So जो भी specifications दी हुई हैं guidelines में, as in कितने size तक का होना चाहिए image, वो फॉलो करके आपको उस फोटोग्राफ को और सिग्नेचर को जब आप अपलोड करोगे आपको उसी साइज में उसको रखना है. नेक्स्ट, कैंडिडेट्स कैन प्रोसीड टू फिल एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल. तो स्टेप 5 में आप एकेडमिक और वर्क एक्स डिटेल्स भरते हो. स्टेप 6 में यू आर क्लिकिंग ऑन द प्रीव्यू टैब. जैसा कि मैंने बताया, बिफोर यू सबमिट द फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन होता है टू चेक द डिटेल्स वंस अगेन. Next, step number 7 में you can modify the details if required and click on submit only after verifying and ensuring that the photograph, signature uploaded and other details filled by you are correct. Applicant details cannot be edited once the application form is submitted after the payment. पेमेंट के बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते, बट ड्यूरिंग द प्रीव्यू प्रोसेस, एज आई सेड, यू हैव द ऑप्शन टू मॉडिफाई द डिटेल्स और एडिट एनी डिटेल्स इफ यू विश टू. कहीं लग रहा है कुछ मिसमैच हो गया है तो उसको एडिट कर सकते हो. नेक्स्ट, select XLRI program as per your preference if you want to study in XLRI through XAT or through GMAT. So GMAT का जो प्रेफरेंस है, आई डोंट थिंक सो वो इंडियन कैंडिडेट्स के लिए है. इट इज फॉर द NRI स्टूडेंट्स आई बिलीव. बट यहाँ पे XLRI प्रोग्राम आप तभी चूज करोगे इफ यू वांट टू. डेफिनेटली आवर टारगेट इज XLRI, बट XLRI में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. सो हियर इन द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आई विल टेल यू कि आपको कौन से जो प्रोग्राम्स हैं वो चूज करने हैं. Select XAT test city preference. Candidates can choose to prefer test cities while filling the XAT application form. Candidates are advised to choose the test city closer to their city residence. Of course, it's a mandatory thing कि अगर आपकी सिटी में आपको लग रहा है एग्जाम हो रहा है, वो जो गिवन सिटी ऑफ चार्ट्स है उसमें से आपको अगर दिख रहा है कि आपका सिटी है तो सबसे पहले तो आप अपना सिटी ही चूज करोगे. नेक्स्ट, जो भी नियरेस्ट होगा आपके सिटी से आप वो चूज करोगे. सो यू हैव द ऑप्शन, यू हैव द प्रेफरेंस टू चूज सिटीज एज वेल ओवर योर. You can edit the test city preference only once before November 30th, 2024. So here they've given this one deadline to you guys कि November 30th से पहले पहले अगर आपको चाहिए तो आप edit कर सकते हो अपना test city preference if you wish to. Next, step 10 में click on the payment tab है and then proceed for payment. Step 11 में you need to click on the submit button. Now here they've mentioned the fees. तो XAT का जो registration fees है, let us look at the amount. It is 2200 for Indian candidates applying through PGDM GM through GMAT GRE. It is 2500. Now there is a program जो यहाँ पे है XLRI में PGDM GM करके, which is a general management program of 18 months. तो through GMAT और GRE वो उसको accept करता है, तो उसका fee is 2500. Next, candidates interested in XLRI programs need to pay an additional fee of 200 each. तो यहाँ पे जब आप XLRI का कोई भी प्रोग्राम चूज करते हो थ्रू XAT तो आपको एडिशनली 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. ठीक है. फी फॉर NRI foreign candidates applying for more than
for one or more programs through GMAT is rupees 5,000. So this is for the NRI foreign candidates over here. Indian candidates can apply through GMAT GRE only for the PGDM GM program. तो PGDM GM के लिए ही आप सिर्फ GMAT और GRE के scores के through apply कर सकते हो, whereas an NRI foreign national can apply through GMAT for all programs. Kindly note GRE scores are only valid for PGDM GM. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे कुछ, ये आई थिंक आपको एक बार रीड कर लेने चाहिए कि व्हाट आर दीज पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस. सो हियर दे हैव गिवन की फैसिलिटी है डाउनलोड करने की, प्रिंट करने की आपका एप्लीकेशन फॉर्म विच कंटेन्स योर फी डिटेल्स, योर पेमेंट ऑफ फीस. तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है या जो पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उन दोनों का आप जो रिसीट है, पेमेंट का रिसीट एंड एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी पीडीएफ फॉर्मेट है, वो अपने पास डाउनलोड करके रख लो. बिकॉज दैट एग्जाम तो जनवरी में है, तब तक काफी सारी चीजें आएंगी. कैट का एग्जाम होगा, यू विल हैव स्नैप ऑल्सो इन बिटवीन, एनमैट का भी एग्जाम विंडो हो चुका होगा. तो आपके पास जो आपकी डिटेल्स जो हैं, जो भी आपने फिल आउट किए हैं, एटलीस्ट आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म हैंडी होना चाहिए. नेक्स्ट, बिफोर अप्लाइंग online, candidate will be required to have a scanned digital image of his her photograph and signature as per below specifications. तो यहाँ पे specifications दिए हुए हैं. जैसा कि मैंने कहा, आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, तो उसके कुछ specifications हैं. Candidate may edit the application and re-upload the photograph signature in such case. Okay, so here they have mentioned कि आप पेमेंट भी कैसे कर सकते हो. पेमेंट आप डेबिट कार्ड्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं, क्रेडिट कार्ड्स, इनके थ्रू कर सकते हो. आफ्टर सबमिटिंग योर पेमेंट इंफॉर्मेशन, प्लीज वेट फॉर द इंटीमेशन फ्रॉम द सर्वर. तो जब भी आप पेमेंट कर रहे हो थ्रू द ऑनलाइन मोड, डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे यूपीआई हो, कोई भी मोड हो, आपको वेट करना है. ऐसा नहीं कि वो पेज लोड हो रहा है और आपने एकदम क्लोज कर दिया. सो देन इट माइट बी हैपनिंग कि आपका पेमेंट पेज जो है वहीं पे स्टक हो जाए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही सबमिट ना हो, तो वहां बहुत बड़ा लूप होल आ सकता है. ये बहुत बार होता है, ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं. सो टू अवॉइड दैट, लेट अस बी वेरी केयरफुल विद दिस प्रोसेस ऑफ पेमेंट कि जब तक मेरा पूरा पेमेंट पेज लोड नहीं होगा, वी वुड नॉट बी क्लोजिंग दैट unless and until we see this thing कि your application form is submitted, या हम कोई ग्रीन सिग्नल देखेंगे, उसके बाद ही हम पेमेंट पेज को क्लोज करेंगे. नेक्स्ट, अगेन योर सक्सेसफुल कंप्लीशन जब आपका हो जाएगा ट्रांजैक्शन का, तो एक ई रिसीट भी जनरेट होगा. तो जनरेशन ऑफ ई रिसीट इंडिकेट्स पेमेंट फेलियर. On a failure of payment, candidates are advised to log in again using the registered email ID and password and repeat the process of payment. तो अगर आपका पेमेंट, अगर आपका ई रिसीट जनरेट नहीं होता है, दैट मीन्स कि आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या आपके बैंक अकाउंट से कुछ भी अमाउंट नहीं गया है. सो आपका जो पेमेंट है वो फेल हो गया है. तो दोबारा से पेमेंट करने के लिए यू विल हैव टू लॉग इन इनटू योर अकाउंट अगेन. नेक्स्ट, इफ यू सी ओवर हियर, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द ई रिसीट. जैसा कि मैंने सजेस्ट किया कि ई रिसीट का और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आप निकाल के रखो अपने पास फॉर योर सेफ्टी. प्लीज नोट दैट इफ the same cannot be generated, online transaction may not have been successful. अगर दोनों में से कुछ भी जनरेट नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स आपका जो ट्रांजैक्शन है, आपका जो पेमेंट है, वहां पे कुछ गड़बड़ हुआ है या वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो आपको दोबारा से लॉग इन करके पे करना पड़ेगा. For card charges are listed in Indian rupee. If you use a non-Indian credit card, your bank will convert your local currency based on prevailing exchange rates. This is again related to the payment thing. Photograph से related आप एक बार यहाँ पे देख लो. Photograph must be a recent passport size color picture. Black and white picture नहीं चलेगा. Please note only colored picture will work over here. If the picture is taken on any sunny day, have the sun behind you or place yourself in a shade so that you are not squinting and there are no harsh shadows. This does not make any sense over here. As I've said कि आप proper किसी white background में जाके ही फोटो क्लिक करवाओ, ताकि आपको बाकी एग्जाम्स में, बाकी भी स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म्स में भी वो फोटो काम आ जाए. Then next, look straight at the camera with a relaxed face.
Then if the picture is not taken on a sunny day, have the sun behind you or place yourself in the shade so that you're not squinting or there are no harsh shadow. If you have to use flash, ensure there's no red eye. तो अगर फ्लैश का यूज होता है तो यू हैव टू इंश्योर देयर इज नो रेड आई. अगर आप ग्लासेस पहनते हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा हो आपके फोटो में. ओके. नेक्स्ट, कैप्स, हैट्स, डार्क ग्लासेस आर नॉट एक्सेप्टेबल. सो ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है इन योर इमेज. रिलीजियस हेडवेयर इज अलाउड बट इट मस्ट नॉट कवर योर फेस. आपका फेस प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे एट दैट टाइम दे विल बी चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका फेस क्लियरली विजिबल हो इन द फोटोग्राफ. नेक्स्ट, ensure that the size of the scanned image should be between. Now they've given this particular size over here, आप note down कर लो और इस particular size में अपने image को convert कर लो. 20 KB to 50 KB के बीच में होना चाहिए. If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner, such as the DPI resolution, number of colors, etc. during the process of scanning. So there are a lot of platforms where you can go and scan your photographs and you can reduce them to the minimum size. So वो सारे options आपके पास रहते हैं. Signature image के भी यहाँ पे requirements दिए हुए हैं. Applicant has to sign on a white paper with a black ink pen. Again, please note, व्हाइट पेपर होना चाहिए विथ अ ब्लैक इंक पेन. ब्लू से या किसी और दूसरे कलर से मत कीजिए, जो यहाँ पे दिया हुआ है प्लीज फॉलो दैट. नेक्स्ट, सिग्नेचर मस्ट बी साइंड ओनली बाय द एप्लीकेंट एंड नॉट बाय एनी अदर पर्सन. तो फॉर्ज नहीं करना है यहाँ पे कुछ भी, आपका ही सिग्नेचर होना चाहिए. सिग्नेचर विल बी यूज टू पुट ऑन द एडमिट कार्ड एंड वेर एवर नेसेसरी. तो जहां भी रिक्वायर्ड होगा वहां पे सिग्नेचर आपका लगेगा. नेक्स्ट, एप्लीकेंट सिग्नेचर obtained on the admit card and attendance sheet at the time of the examination should match the uploaded signature. In case of mismatch, the candidate may be disqualified. So जो भी signature यहाँ सबमिट कर रहे हो वही सिग्नेचर आपका एडमिट कार्ड पे भी होगा. सो वो लोग मैच करेंगे कि आपका वो वाला सिग्नेचर जो अपलोडेड वाला सिग्नेचर एडमिट कार्ड के साथ प्रिंट हो गया आएगा और जब आप ड्यूरिंग द एग्जाम साइन कर रहे हो वो मैच होना चाहिए. अगर नहीं हुआ सो यू वुड बी डिस्क्वालिफाइड. Next, ensure that the size of the scanned image should be between 20 KB to 50 KB. Again, यहाँ भी आप सिग्नेचर का जो इमेज है वो अपलोड करोगे तो इंश्योर करना है कि इसी साइज के बीच में हो. ओके. Scanning photograph signature. So this is again given over here. Set true to the color file as specified above. So these are all the suggestions that are given to you. You can go through this particular thing. Now the very important step, let us go to the register process. तो यहाँ पे login और register के दो buttons आपको दिखे. We clicked on register and we landed to this particular page. यहाँ पे आपको अपना नाम, अपना email address registration के लिए, अपना mobile number. Now make sure it should be your mobile number ताकि सारी डिटेल्स जो भी हैं आपको अपने पर्टिकुलर ईमेल या मोबाइल नंबर पे ही आए. सो मेक श्योर ये इन्फॉर्मेशन बहुत केयरफुली फिल करो. पासवर्ड ऐसा सेट करना जो आपको याद रहे ना. यहाँ पे पासवर्ड सेट करने के लिए दे हैव दीज पर्टिकुलर क्राइटेरियाज कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए एंड एटलीस्ट 2 आउट ऑफ बिलो कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए. एक आपको केस लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक लेटर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर बीट हैशटैग स्टार और @ anything you can use. Next, state select करोगे आप, जो भी आपका state है you select that. City select करोगे आप and then you will enter this particular captcha or the text that is given over here and यहाँ पे agree to receive the information and then when you click on register then आप automatically register हो जाओगे for the ZAT application form. ठीक है. Next, when you are registered, you will receive a registration mail. Registration mail जब आप receive करोगे तो आपको verify करना है कि yes, you accept to register for that or something like that. You will receive a mail. Mail जब आप receive करोगे उस पे registration पे click करोगे. Then दोबारा जब आप login करोगे तो login करने के बाद this is the thing that you receive. Thank you for registering with ZAT. तो we have sent you a verification link at that particular email. जो भी email आपने दिया होगा उस पे आपको verification link आएगा. Kindly check करने के बाद आपका registration जो process है वो complete हो जाएगा. फिर आपको login करना है तो login again
सेम ऐसा ही पेज ओपन होता है फॉर लॉगिन। ओके, यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे, दिस पर्टिकुलर आइकन दैट यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, लॉगिन में अगेन यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस और यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड सेट किया था वो, और देन क्लिक टू रिमेंबर योर डिटेल्स इफ यू विश टू। अगर आपको बाद में फिर रजिस्टर करना है तो यू कैन क्लिक दिस पर्टिकुलर आइकन एंड देन यू विल क्लिक ऑन लॉगिन। लॉगिन पे जब आप क्लिक करोगे तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाओगे, विच विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज द पर्टिकुलर डैशबोर्ड दैट यू हैव, और यहाँ पे आप सारे स्टेप्स देख सकते हो एज एन एप्लीकेशन फॉर्म का। सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल भरना है, क्वेरीज से रिलेटेड ऑल्सो दे हैव अ टैब, कम्युनिकेशन, पेमेंट्स और लॉग आउट, तो ये सारे टैब्स हैं आपके पास। डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे तो डैशबोर्ड ऐसा दिखेगा आपका। तो अभी तक आपका जो फॉर्म है, अभी तक हमने फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं किया है, सो दैट इज व्हाई द डैशबोर्ड इज लुकिंग लाइक दिस। हियर यू विल बी एबल टू सी योर नेम एज वेल। Okay, so now let us begin with the very first process, first step. तो first step में basic details भरनी है। Now यहाँ पे carefully ये instructions एक बार आप पढ़ लो। Instructions में fields marked with star are mandatory. Candidates will receive the login ID and password on the registered email address and mobile number. Overseas candidates will receive the login ID and password only on the registered email address. Ensure that you provide correct name, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो सारे जो डिटेल्स हैं वो प्लीज केयरफुली और करेक्टली फिल करना, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी पर्टिकुलर डिटेल। नेक्स्ट, यहाँ पे आप स्टेप्स देख पा रहे हो। तो सबसे पहला स्टेप, हमें बेसिक डिटेल्स फिल करने हैं, देन अकेडमिक डिटेल्स, देन योर वर्क एक्सपीरियंस एंड योर प्रोग्राम डिटेल्स, देन योर टेस्ट सिटी एज इन जो आप प्रेफरेंस चूज करोगे कि आपको कहाँ एग्जाम देना है उसके डिटेल्स। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग, ऑटोमेटिकली जो सर्वर है वो आपका नाम एज इन आपने नाम जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया है वो एक्सेप्ट कर लेगा, आपका लास्ट नेम भी एक्सेप्ट कर लेगा, आपका मोबाइल नंबर भी पहले से यहाँ शो होगा और आपका ईमेल एड्रेस भी पहले से यहाँ शो होगा। आपको यहाँ पे अपना टाइटल चूज करना है एज इन मिस्टर, मिस, मिसेस, वट एवर द टाइटल इज मेंशन्ड। मिडिल नेम इफ यू हैव एनी यू कैन पुट। ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। मोबाइल नंबर अगर कोई है ऑल्टरनेट आपके पास तो वो भी आप एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ बहुत केयरफुली आपको फिल करनी है। जो भी आपके 10th या 12th के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ दी है, प्लीज वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ फिल कीजिए। अगेन कैसा फॉर्मेट है यहाँ पे, DDMMYY है। सो फर्स्ट डेट, देन मंथ एंड देन ईयर, एंड देन ऑटोमेटिकली आपकी एज कैलकुलेट करके बता देगा एज ऑन 31 अगस्त 2025 आपकी क्या एज होगी। देन योर जेंडर यू नीड टू फिल, योर नेशनैलिटी एज एन इंडियन हो आप क्या हो तो वो नेशनैलिटी फिल करनी पड़ेगी। योर मैरिटल स्टेटस एज इन सिंगल, विडोड, मैरिड, वट एवर। ठीक है, देन योर ब्लड ग्रुप। तो देख लेते हैं आगे स्लाइड्स में उसके क्या ऑप्शंस हैं। एज आई सेड, टाइटल के लिए यू हैव मिस्टर, मिसेस और मिस ओवर हियर। देन नेक्स्ट आपके पास मैरिटल स्टेटस के लिए सिंगल, मैरिड, डिवोर्सी, विडो, जुडिशियली सेपरेटेड, ये सारे ऑप्शंस हैं। देन ब्लड ग्रुप, प्लीज केयरफुली और करेक्ट ब्लड ग्रुप चूज करना। ए पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, सो ये सारे ऑप्शंस हैं ब्लड ग्रुप के। देन जेंडर, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर, अगर ट्रांसजेंडर या एनी अदर जेंडर यू हैव, सो यू नीड टू चूज दैट। नेशनैलिटी में इंडियन, NRI, फॉरेन, person of Indian origin, overseas citizenship of India, so these are the nationality requirements over here. Next, country of residence, again यहाँ पे आप इंडिया चूज करोगे, आप इंडिया से हो तो here you will have that option. Next, अगला ऑप्शन है कि डू यू बिलोंग टू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप PWD कैटेगरी से हो तो आपको यस या नो में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज, डू यू बिलोंग टू अ कश्मीरी माइग्रेंट फैमिली और नॉट। अगेन यहाँ पे भी यस या नो में से चूज करना है। अगर आप नो पे क्लिक करोगे तो एक और क्वेश्चन आएगा, डू यू बिलोंग टू अ कश्मीरी नॉन माइग्रेंट फैमिली और नॉट। मतलब कश्मीर से ही हो बट अगर नॉन माइग्रेंट फैमिली से हो तो अगर आपका जवाब नो है तो क्लिक ऑन नो, इफ इट इज यस देन क्लिक ऑन यस। ओके,
नेक्स्ट पेरेंट्स डिटेल यहाँ पे फिल करना है, तो आपके पास अगेन ऑप्शन है कि आप दोनों के डिटेल्स देना चाहते हो, एज इन फादर मदर, और इफ यू हैव अ सिंगल पेरेंट तो सिर्फ उसके डिटेल्स देने हैं, या सिर्फ गार्डियन डिटेल्स, इफ यू हैव एनी गार्डियन सिर्फ उसके डिटेल्स देने हैं, सो यू हैव दैट ऑप्शन ओवर हियर। किसी के भी डिटेल्स आप दे सकते हो, बट वो चूज करना इंपॉर्टेंट है कि आप किनके डिटेल्स दे रहे हो। नेक्स्ट व्हेन वी कम ओवर हियर, सो यहाँ पे जैसे मैंने चूज किया था कि फादर एंड मदर बोथ द डिटेल्स, सो दोनों के डिटेल्स आपको फिल करने पड़ेंगे। योर फादर्स टाइटल, फादर्स नेम, मदर्स टाइटल, मदर्स नेम। अगेन ऑप्शन क्या क्या आता है इसमें, so Mr. if I'm choosing for my father, so here the name I have to enter, father's name, उनका email address भी enter करना पड़ेगा, mandatory है। देन मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा आपको, और आपके फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है दैट यू नीड टू एंटर ओवर हियर। नेक्स्ट इनकम स्लैब के बारे में भी आपसे पूछेंगे कि किस इनकम स्लैब में आते हैं वो, इफ इट इज 1 लाख से 2 लाख के बीच में, 2 लाख से 3 लाख के बीच में, तो आपको यू हैव टू सिलेक्ट द इनकम स्लैब एज वेल। नेक्स्ट मदर्स टाइटल, अगेन Mrs. we will be choosing for the mother's name you need to mention over here। ईमेल एड्रेस अगर है तो आप मेंशन कर सकते हो, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, यू कैन सी देयर इज अ स्टार मार्क ओवर हियर। अगेन मदर्स ऑक्यूपेशन, व्हाटएवर योर मदर्स ऑक्यूपेशन इज यू सिलेक्ट दैट, एंड उसके हिसाब से जो भी आपसे इनकम या जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यू नीड टू टेक दैट फॉरवर्ड। Next, if we go ahead again, here we need to fill our address, communication address. Now here when we talk about the communication address, I would personally suggest कि आप अपना permanent address ही enter करो। बहुत सारे students के doubt होते हैं कि I live in a hostel, I live in a PG, I don't stay with my family now, so मुझे क्या address डालना चाहिए। In that condition also, अगर आपको लग रहा है कि ड्यूरिंग दैट एंड इवन आफ्टर दैट यू वुड बी स्टेइंग एट द सेम प्लेस, तो आप वो पर्टिकुलर एड्रेस डालो। इफ नॉट, माय सजेशन वुड बी कि आप अपने घर का जो आपका परमानेंट एड्रेस है, रेसिडेंशियल एड्रेस, आप वही एंटर करो। सो यहाँ पे पहले कंट्री, देन द स्टेट दैट यू आर लिविंग इन, योर डिस्ट्रिक्ट यू नीड टू एंटर। ये ऑटोमेटिकली वैसे फिल हो जाएगा बिकॉज आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये सब details दिए हैं, so it automatically gets filled. Then you have address line 1, so एक लाइन में अगर एड्रेस नहीं लिखना है, so you have address line 2 as well। अगर आपको लग रहा है आपका एड्रेस लेंदी है, then please ensure कि आप करेक्ट पिन कोड भी फिल करो। a lot of times it happens कि पिन कोड के वजह से भी एड्रेस में मिसमैच हो जाता है, तो अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड जहाँ पे भी आपका एड्रेस मेंशन है, आपका रेजिडेंशियल, आपका परमानेंट एड्रेस मेंशन है, मेक श्योर यू कीप दैट डॉक्यूमेंट विथ यू व्हाइल फिलिंग योर एड्रेस। नेक्स्ट, नाउ हियर अगर आप इस पे क्लिक करते, अगर आप सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करोगे तो यू विल बी कमिंग बैक टू योर डैशबोर्ड विच विल बी लाइक दिस। लेकिन अगर आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यू विल बी गोइंग ओवर हियर on the second important detail, that is your academic details। तो यहाँ डैशबोर्ड पे आपको दिखेगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म 45% कंप्लीट हुआ है अभी और रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग हम नेक्स्ट पे क्लिक करके उसे कंप्लीट करेंगे। एकेडमिक डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले और 10th का जो स्टेट है, आपने 10th का जो एग्जाम है वो कौन सी स्टेट से दिया है, पहले वो सिलेक्ट करोगे। वो सिलेक्ट करने के बाद आपसे सिटी भी पूछी जाएगी कि स्टेट, सपोज इफ इट्स मध्य प्रदेश में इंदौर है या जबलपुर है फॉर दैट मैटर, देन यू सिलेक्ट द सिटी एज वेल इक्विवेलेंट टू द स्टेट। नेक्स्ट, यू विल बी आस्क्ड अबाउट योर इंस्टीट्यूट नेम, एज इन आपने 10th का एग्जाम कौन से स्कूल से, कौन से इंस्टीट्यूट से दिया। देन आपको यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन में ये ऑप्शंस है, और भी ऑप्शंस है। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो जो भी आपका बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना है। देन यू नीड टू चूज
द ईयर ऑफ पासिंग। तो जिस भी ईयर में आपने अपना 10th पास आउट किया है वो ईयर आपको यहाँ लिखना है। इसीलिए अभी मैंडेटरी है कि आप अपना इस स्टेज में अपने 10th और 12th के जो मार्कशीट्स हैं वो अपने पास हैंडी रखो। नेक्स्ट यहाँ पे मार्किंग स्कीम आपको चूज करना है कि सीजीपीए है या परसेंटेज है, आपको किस बेसिस पे मिला है। सो ऑफ कोर्स व्हेन इट्स अ सीबीएसई स्टूडेंट, सो सीजीपीए के बेसिस पे ही आपका रिजल्ट था। अगर कोई और बोर्ड है तो हो सकता है परसेंटेज हो। तो जब आप परसेंटेज चूज करोगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और जो भी परसेंटेज आया वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीजीपीए चूज करते हो तो यहाँ पे आपको सीजीपीए लिखना है और जो भी सीजीपीए में कन्वर्जन करना है आपको अपने परसेंटेज में। तो आपका जो मार्कशीट होगा 10th का उसमें पीछे या कहीं पे मेंशन होगा एक फॉर्मूला टू कन्वर्ट योर सीजीपीए इनटू परसेंटेज। एंड इफ नॉट, अगर मेंशन नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने किसी सीनियर से या स्कूल में अपने किसी अथॉरिटी से पूछ सकते हो कि भाई क्या कन्वर्जन रहता है सीजीपीए टू परसेंटेज का, इफ यू डू नॉट हैव इट ऑन योर मार्कशीट। बट सीबीएसई में रहता है, देयर इज अ फॉर्मूला। इफ आई हैव टू ब्रीफ इट आउट, तो जो भी आपका सीजीपीए, सपोज आपका सीजीपीए 8.8 है तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना होता है 9.5 से। 9.5 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपको ये बताना है कि 10th क्वालिफिकेशन के बाद आपने 12th किया है तो 12th पे सिलेक्ट करोगे, और अगर आपके पास कोई डिप्लोमा भी है तो आप उस पर भी चूज कर सकते हो। ठीक है, सो व्हेन यू कम कवर द 10th डिटेल्स, तो 10th में अगेन यहाँ पे जब आप सीजीपीए मेंशन करते हो तो आपको सीजीपीए को परसेंट में कन्वर्ट करना है, दैट इज मैंडेटरी। ओके, तो 10th के बाद एज वी सेड कि हमें 12th के डिटेल्स फिल करने हैं। सो यहाँ पे सिलेक्टेड ओवर हियर 12th में अगेन स्टेट और सिटी जैसा हमने 10th के लिए किया, हमें वो मेंशन करना पड़ेगा कौन से स्टेट से आपने 12th किया है, कौन सी सिटी से आपने 12th का एग्जाम दिया है। नेक्स्ट अगेन इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी जो भी आपका है, स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, वो मेंशन करना है। अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रीम। तो स्ट्रीम आपको मेंशन करना है कि 12th में कौन सा स्ट्रीम था, आर्ट्स था, कॉमर्स था, साइंस था या दूसरा कोई स्ट्रीम होगा तो उसके लिए यू विल गेट अ ऑप्शन टू राइट द स्ट्रीम। नेक्स्ट ईयर ऑफ पासिंग क्या था, अगेन 12th का मार्कशीट अपने पास रख लेना प्लीज। इफ यू डू नॉट रिमेंबर योर ईयर ऑफ पासिंग फॉर 12th, देन योर मार्किंग स्कीम परसेंटेज होगा तो ऑटोमेटिकली आपसे मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स वो पूछेगा। मैक्सिमम एज इन अगर 500 या 600 मार्क्स का आपका पेपर था, आपके 5 सब्जेक्ट्स थे या 6 सब्जेक्ट्स थे, उसमें से आपके क्या ऑब्टेन्ड मार्क्स आए वो आपके मार्कशीट पे मेंशन होगा, आपको उसका टोटल लिखना है। एंड देन द ऑब्टेन्ड परसेंटेज will be calculated automatically with the marks that you write over here. Okay, so here since I selected percentage, ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम मार्क्स फिल करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स फिल करने के लिए बोल रहा है, ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज भी कैलकुलेट करके बता देगा। नेक्स्ट, now other qualification details. So do you have any professional degree such as CA, CS, ICWS, CFA? अगर आपके पास ऐसी कोई प्रोफेशनल डिग्री है ऑलरेडी तो आप यस या नो में से ऑप्शन चूज कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो आगे। नेक्स्ट, अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल ग्रेजुएशन डिटेल फिल करना है। तो ग्रेजुएशन का टाइप क्या है आपका, इज इट अ सिंगल ग्रेजुएशन, डुअल और इंटीग्रेटेड, यू नीड टू सिलेक्ट दैट कि आपका कैसा ग्रेजुएशन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड वाले फॉर्म में भी होते हैं, एज एन 5 years का प्रोग्राम होता है किसी किसी का। सो यू नीड टू सिलेक्ट द ग्रेजुएशन टाइप, देन यू नीड टू सिलेक्ट ग्रेजुएशन स्ट्रीम। आप टाइप चूज कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रीम चूज करने के लिए भी बोलेगा। स्ट्रीम में अगर आप इंजीनियरिंग से हो, मैनेजमेंट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस मैथ से हो, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज से हो, आपको स्ट्रीम चूज करना पड़ेगा अपना। नेक्स्ट, व्हेन वी गो ओवर हियर अगेन स्टेट आपको चूज करना पड़ेगा कि आपने ग्रेजुएशन कौन से स्टेट से किया है। देन आपका ग्रेजुएशन का बोर्ड या यूनिवर्सिटी क्या है। सो यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन आपको दिया होगा। अगर आपका यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं है, इस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स पे मेंशन नहीं है, आप अदर पे क्लिक करके आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा टू फिल योर यूनिवर्सिटी नेम। ठीक है,
Once you select that, your university, then you will have to choose your college from that particular university. तो यहाँ पे colleges की भी लिस्ट दी हुई है. अगेन अगर आपका कॉलेज नहीं दिया हुआ है, आप अदर पे क्लिक करके देन अपना कॉलेज अलग से फिल कर सकते हो. नेक्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज टाइप, कि आपका स्टेट है यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कैसा टाइप है. प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, सो यू नीड टू सिलेक्ट दैट टाइप, तो उसका एक अलग डायलॉग बॉक्स होगा. नेक्स्ट ग्रेजुएशन एग्जाम पैटर्न, कैसा एग्जाम पैटर्न होता है आपका, ईयर वाइज होता है या सेमेस्टर वाइज होता है, वो आपको चूज करना है. सो एज आई मेंशन, कॉलेज टाइप में आपसे ये सारे क्वेश्चंस आएंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट है, डीम्ड है, प्राइवेट है, फॉरेन है, आईआईटी या एनआईटी से हो आप, या अदर. अदर का भी ऑप्शन है, तो अदर है तो अगेन आपको फिल करना पड़ेगा. अगेन ग्रेजुएशन एग्जाम पैटर्न में यू विल हैव वेदर यू हैव अ ईयर वाइज काइंड ऑफ अ ग्रेजुएशन और अ सेमेस्टर वाइज आपका होता है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा. हियर अगेन आप ये सारे डिटेल्स देख लो, सेम जैसा हमने 10th और 12th में भरा था वैसे हमें यहाँ पे डिग्री भरना है, डिसिप्लिन भरना है, ईयर ऑफ पासिंग भरना है. यू हैव टू सिलेक्ट योर रिजल्ट स्टेटस, एज एन आपका ग्रेजुएशन ऑन गोइंग है तो यू आर अवेटिंग फॉर द रिजल्ट, या आपका हो चुका है तो यू आर डिक्लेयर्ड पे क्लिक करोगे आप. मार्किंग स्कीम कैसा है, अगेन परसेंटेज है, सीजीपीए है, देन उसके हिसाब से आपको अपने जो मार्क्स है वो यहाँ पे फिल करने होंगे. सी सो एज आई मेंशन, सबसे पहले डिग्री पे क्लिक करोगे कि आपकी डिग्री का नाम क्या है, वेदर योर बीए आर्ट्स का डिग्री है, बीकॉम का है, बीएमएस है, या बी डिजाइन है, बी आर्क है, बी ऑप्टम है, जो भी आपका डिग्री है, बी फार्मा है, उस पर चूज करोगे. नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिसिप्लिन पे. तो डिसिप्लिन पे आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शन है, एज इन डिग्री का डिसिप्लिन क्या है. अगर आर्ट स्टूडेंट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आर्ट्स का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा. अगर आप बीबीए से हो तो मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे, आप बीकॉम से हो तो आप कॉमर्स पे क्लिक करोगे. सो यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस. नेक्स्ट ईयर चूज करना है आपको कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो कब कंप्लीट होगा, या अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हो तो आपके उस ग्रेजुएशन डिग्री के ऊपर ईयर ऑफ पासिंग लिखा होगा. नेक्स्ट रिजल्ट स्टेटस. नाउ अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं या अपने फोर्थ ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, दिस इज फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, एंड जो थर्ड ईयर में हैं वो कॉमर्स या आर्ट्स या जो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स होंगे, तो उनका रिजल्ट अभी नहीं आया होगा तो आपको अवेटेड पे क्लिक करना है. लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है ऑलरेडी तो आपको डिक्लेयर्ड पे क्लिक करना होगा. ओके, सो दो ऑप्शंस हैं आपके पास. तो जब आप अवेटेड पे क्लिक करोगे तो आपको अभी तक आपके जितने भी ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उनका एवरेज निकाल के आप यहाँ पे लिख सकते हो. आई नो आपको कंफ्यूजन होगा कि मैम कैसे निकालना है, ये कैसे होगा, बट जितना भी आपका एवरेज बनता है अभी तक का आप वो यहाँ पे फिल कर लो. और अगर ऑलरेडी आपका रिजल्ट आ चुका है, आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन क्लियर कर चुके हो, तो देन यहाँ पे अगेन आपको मार्किंग स्कीम चूज करना पड़ेगा कि परसेंटेज है, सीजीपीए है. अगर अवेटेड भी है तो भी आपको मार्किंग स्कीम तो चूज करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट अगर सीजीपीए है तो आपको यहाँ पे अपना सीजीपीए लिखना पड़ेगा, एंड देन आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में आई हैव सीन सीजीपीए चलता है. अगेन आपका जो भी यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला है टू कन्वर्ट सीजीपीए या एसजीपीए इनटू परसेंटेज, आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए. आप अपने यूनिवर्सिटीज से या जो भी आपके फैकल्टीज हैं उस यूनिवर्सिटीज में, आप उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए, किसी सीनियर से कोऑर्डिनेट कीजिए, एंड प्लीज इंश्योर कि आप उस फॉर्मूला के बेसिस पे जो भी आपके मार्क्स हैं आप उनको कन्वर्ट करो. ठीक है, सो जैसा मैंने कहा सीजीपीए चूज करोगे सो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट टू परसेंटेज. नेक्स्ट द थिंग दैट वी हैव इज, डू यू हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और नॉट. तो अगर आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या इसके अलावा कोई मास्टर्स डिग्री भी है, ग्रेजुएशन के अलावा और कोई डिग्री भी है पोस्ट ग्रेड में, तो अगर वो है तो येस या नो आप चूज करो. अगर है तो अगेन सेम डिटेल्स आपको फिल करने पड़ेंगे, उसके लिए भी सारे मार्क्स और कब कंप्लीट होगा, ईयर ऑफ कंप्लीशन, all those details you will have to fill.
Next, now we are done with 65% of the form, and now comes the work experience and your program details. Okay, so work experience में पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं, तो yes या no में से आप चूज करोगे. अगेन इफ यू क्लिक ऑन yes, देन आपको ये डिटेल्स भरने पड़ेंगे. अगर yes पे क्लिक करते हो तो आर यू करेंटली एम्प्लॉयड, क्या आप अभी भी काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में. अगेन यस या नो पे आप क्लिक करोगे. एंटर योर वर्क एक्सपीरियंस टिल 31st March 2025. तो यहाँ तक का वर्क एक्सपीरियंस दे हैव मेंशन्ड. ओनली फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन मस्ट बी एंटर्ड. नाउ यहाँ पे कोई इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा. ओनली अगर आपका 9 to 5 या 9 to 6 का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है तो सिर्फ वही काउंट होगा. पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, pre-graduation work experience should not be entered as it will not be counted as the work ex. तो जो भी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को वर्क एक्स के अराउंड होता है कि मैम इंटर्नशिप है 6 महीने का है 9 महीने का है, इट वोंट बी काउंटेड. इंटर्नशिप की तरह ही देखा जाता है, बट वर्क एक्सपीरियंस, फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट एंड इट इज ओनली कैलकुलेटेड आफ्टर योर ग्रेजुएशन. एज एन आपका जब ग्रेजुएशन हो जाता है उसके बाद ही आपका वर्क एक्सपीरियंस का जो चीज है वो काउंट होता है. नेक्स्ट, mention the most recent experience details first and so up to 5 employments. So आपके पास 5 एक्सपीरियंसेस एंटर करने का यहाँ पे ऑप्शन है. तो सबसे रीसेंट वाले से आप पहले स्टार्ट करोगे. तो अगर आपने 1 से 2 फर्म्स में काम किया है, उससे ज्यादा फर्म्स में काम किया है, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो. यू हैव अ ऑप्शन टू सिलेक्ट मोर ओवर हियर. तो आप मोर पे क्लिक करोगे तो आप और अपने जो वर्क एक्सपीरियंस के डिटेल्स हैं, अगर आपने किसी और फर्म के साथ भी काम किया है तो आप वो भी यहाँ एंटर कर सकते हो. नेक्स्ट, जब आप मोर पे क्लिक करोगे, एज आई सेड, यू हैव द ऑप्शन टू फिल अप टिल 5 वर्क एक्सपीरियंसेस. देन यहाँ पे आपको अपना टोटल वर्क एक्सपीरियंस इन मंथ्स मेंशन करना है. ठीक है, सो जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे वो टोटल शो करेगा कि कितना आपका टोटल मंथ्स में वर्क एक्सपीरियंस है अभी तक. ठीक है. नेक्स्ट, इफ यू गो अहेड, so one question we will have कि do you want to apply for XLRI. अब obviously हम ZAT का फॉर्म फिल कर रहे हैं, so our target college, the very first college has to be XLRI जमशेदपुर. Now XLRI का एक और कैंपस है दिल्ली में भी, तो यहाँ पे आपको अब प्रोग्राम्स चूज करने हैं. सो नाउ आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फुल टाइम प्रोग्राम्स अप्लाई कर रहे हो XLRI में, एज इन प्रॉपर 2 ईयर का प्रोग्राम देख रहे हो, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट एज इन PGDM BM पे क्लिक करोगे. और दूसरा जो सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है XLRI का, HRM, XLRI इज नोन फॉर इट्स HRM प्रोग्राम, उस पे क्लिक करोगे. रिमेनिंग जो प्रोग्राम्स है, दिस इज अ GMP प्रोग्राम, 18 मंथ्स का FPM है. देन यू हैव अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड देन यू हैव अ इनोवेशन प्रोग्राम एज वेल. ये सिर्फ दिल्ली कैंपस के लिए है. आई वुड सजेस्ट कि आप इन दोनों प्रोग्राम्स पे ही क्लिक करो एंड देन इट विल आस्क यू कि आपका पहला प्रेफरेंस क्या होगा HRM और BM में से. जब आप ये चूज करोगे तो आपको चूज करना है HRM, क्योंकि पहला प्रेफरेंस डेफिनेटली HRM होना चाहिए. फॉर दोज स्टूडेंट्स स्पेशली हु वांट टू गेट इनटू द HR फील्ड, आई वुड सजेस्ट यू शुड चूज HRM एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस. नेक्स्ट, यहाँ पे आपने HRM चूज कर लिया. देन यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, PGDM प्रोग्राम विल बी टेकन एज अ प्रेफरेंस फॉर बोथ दिल्ली एंड जमशेदपुर कैंपसेस. तो PGDM जो यहाँ पे प्रोग्राम है BM का, बिजनेस मैनेजमेंट का, वो दोनों केसेस में कंसिडर होगा. एज इन दिल्ली वाले कैंपस में भी कंसिडर होगा और जमशेदपुर वाले कैंपस में भी कंसिडर होगा. तो आपको अलग से दिल्ली वाले कैंपस के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ओके, so here again, then this is done. 71% of our profile is already done guys. So यहाँ पे अब हम next पे क्लिक करेंगे. next पे क्लिक करने के बाद अब सबसे important stage पे हम आ जाते हैं, that is choosing the city preferences. अगेन बहुत मैंडेटरी चीज है, आई वुड सजेस्ट बहुत अच्छे से चूज करना है इसको. आपके पास यहाँ पे 6 ऑप्शंस हैं सिटी चूज करने के. तो सबसे पहले तो जो आपका सिटी है, अगर वो यहाँ पे मेंशन्ड है तो उसको चूज करो.
अगर नहीं तो उससे नियरेस्ट जो आपको कम्यूट करने में भी इजी हो, बाय ट्रेन और बाय बस, तो आप वो चूज करो। सो यहाँ पे आप अपने 6 सिटीज एंटर कर सकते हो, एज पर योर नियरेस्ट प्रेफरेंस। अब हम जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सो हियर नाउ यू नीड टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स एज इन आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर, जो एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे भी मैच होगा। तो प्लीज इंश्योर कि वही फोटो अपलोड करो जो आप उस टाइम पे अपने एग्जाम के टाइम पे कैरी कर पाओगे। ठीक है, सो रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए ना। यहाँ पे इनके पास एक ऑप्शन ये है कि या तो आप डिजी लॉकर से कर सकते हो, या तो आपके कंप्यूटर पे या सिस्टम पे ऑलरेडी है, सो आप वहां से भी फाइल अपलोड कर सकते हो। सो आपके पास दोनों ऑप्शंस है। सेम आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है, साइज ऑलरेडी मेंशन्ड है, 1 MB होना चाहिए, बोथ फॉर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, और सिर्फ जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, पीएनजी नहीं चलेगा यहाँ पे भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। थर्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप कौन सा चूज कर रहे हो, तो वही प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चूज करो जो आप ड्यूरिंग एग्जाम कैरी करोगे। सपोज यू आर चूजिंग, यू हैव ऑप्शंस फॉर आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। सपोज यू आर चूजिंग आधार कार्ड, तो आधार कार्ड भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगेन डिजी लॉकर से भी कर सकते हो, या अगर आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल फोन में है आधार कार्ड का पिक्चर, तो वो आप डाल सकते हो। अगेन 1 MB इज द लिमिट, ओनली पीडीएफ फॉर्मेट, जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पीएनजी में भी करने का, पीडीएफ में भी करने का। सो आप अपना आधार उस हिसाब से यहाँ अपलोड कर सकते हो। नाउ हियर यू हैव सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन। तो जो भी इंफॉर्मेशन है हर स्टेप पे वी हैव टू इंश्योर कि हम उसे सेव करें। अगर आप सेव पे क्लिक करोगे तो अगेन यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन आएगा नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कि I hereby declare that the information given by me in the application form is true to the best of my knowledge. I declare that I fulfill the eligibility criteria and undertake to produce original documents wherever necessary. I agree to abide by the declaration of the authorities regarding the eligibility of my application. I understand that the misinterpretation or omission of any facts of my application may justify the cancellation of my application and scores. Here again declaration पे आपका नाम और किस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हो या सबमिट कर रहे हो वो यहाँ पे शो होगा। सो जैसे आज का डेट है तो यहाँ पे आज का डेट शो हो रहा है 17th का। Again, now here you have this particular option, same विंडो पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा कि अगर आपको अपना फॉर्म, जैसा कि मैंने कहा, एक बार प्रीव्यू करना है या कुछ डिटेल्स आपको चेक करने हैं या एडिट करने हैं तो आप प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीव्यू पे ही क्लिक करो सो दैट यू कैन चेक योर वेरीफाई योर डिटेल्स। अगर आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली पेमेंट पेज पे आ जाओगे। सो वी विल क्लिक ऑन प्रीव्यू देन। तो प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप जो सारी डिटेल्स आपने अभी तक फिल किए हैं, योर बेसिक डिटेल्स, योर पर्सनल डिटेल्स, योर एकेडमिक, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोग्राम डिटेल्स, टेस्ट सिटी के जो डिटेल्स हैं, अगर लग रहा है कि टेस्ट सिटी चेंज करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं जो लग रहा है उसमें कुछ चेंज करना है, या डिक्लेरेशन, ये सब आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके, यहाँ जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यू वुड बी एबल टू सी and edit all those details which you've already filled. ठीक है, now we will click on make payment. make payment पे जब आप क्लिक करोगे तो ऐसा पेज ओपन होगा, ठीक है, जहाँ पे आपका नाम दिया जाएगा, आपका ईमेल आईडी होगा और आपका फोन नंबर भी होगा। Here the total will be given. अब यहाँ पे हमने 2 प्रोग्राम्स सिलेक्ट किए थे, हमने एक बीएम सिलेक्ट किया था, पीजीडीएम बीएम, और एक्सएलआरआई का हमने एक एचआरएम प्रोग्राम सिलेक्ट किया था। तो उसका अमाउंट भी यहाँ पे एड अप हो गया है एज वी सॉ इन द बिगिनिंग कि 2200 है फी जैट का, बट अब प्रोग्राम चूज करोगे तो उसका एडिशनल फी लगेगा। सो 400 एडिशनल उसका लगा है, सो टोटल कम्स टू 2600। नेक्स्ट, दिस इज हाउ द पेमेंट पेज वुड लुक लाइक। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आगे क्लिक करोगे तो ऐसा ओपन होगा। ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का है, अदर बैंक डेबिट कार्ड का है जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो या रुपे, देन यू हैव अदर बैंक क्रेडिट कार्ड,
नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, यू हैव अदर बैंक नेट बैंकिंग, यूपीआई का भी ऑप्शन है अगर आपको जी पे, भीम या गूगल पे कुछ भी यूज करना है, सो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस यूटिलाइज कर सकते हो. अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर. Okay, students, so this was a detailed video on the ZAC 2025 form filling process. If you have any queries regarding the form filling process, then you can let us know in the comment section below and we will get back to you. And we would be coming up with more such videos and updates. So अगर आप channel पे पहली बार आए हो, I would suggest you to subscribe on the channel because अभी बहुत सारे updates आएंगे related to other management exams as well. So make sure you do not miss out on any update. And please ZAC का form fill करने से पहले please ensure कि आप ये video देख सकें. Till then, stay tuned to Supergrads.